बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को ज प F9 पार्क इस्लामाबाद के मौजूद यम नन बा दलता de खलकु सरा चकुम 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी वा पागे बंदे बखबरी कहू च दुई 26वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी बंदे नज़र सलारी और दिन अलावा चकुम 26वीं आईनी तरमीमी बिल आया सियासतदानों तब फ़ायदा भी या आम खल्क तदा दे फ़ायदा रसी और दिन अलावा दे 26वीं आईनी तरमीमी बिल मामला बंदे दुई हुकूमत या चुकुम खास कर बिलावल भुट्टो जरदारी चुकुम पके अहम किरदार अदा करे दे वर्ता पैगाम सलारी पदे मुख्तलिफ सीज़नों बा दलता चुकुम F9 पार्क तर अगली खलक थी दागुई सरा बखबरे कहू राजी दे मुंग सराओ से आईनी तरमीमी बिल मंजूरी बंदे स्तासु नज़र सदे जी 26वीं आईनी तरमीम माता सिखकारी का ना د یو انسان لپاره ټول 25 کروڑ عوام دلدل کې ارته دغه ضرورت څه شو دا ګټه کوي دا معیشت ټیک کوي معیشت خولټه نقصان کې روان دي موږ خپل بزنسمنی زمون کاروبار په ټاپو ناشته موږ چشمو کاروبار په ټاپو ناشته دومره مال لاوړو څومره به کوي راځي نو موږ له آئینی ترمیم څخه فائدہ پاکستان د 25 کروڑ عوام لپاره نو زنه وایم چې دا یو ښه عمل دی وکړی چیرمن پس پټای بلاول بوټو زرداری وایي چې هغه ډېر یو مطلب ښه اقدام اوچت کو چې کوم دا 26 آئینی ترمیمي بل دی چې کوم منظور شو نو آیا د ستاسو په خیال باندې دغه 26 آئینی ترمیمي بل د سیاستدانانو لپاره فایده لري یا د عام خلکو لپاره نه چې دا د یو کس لپاره د یو پارټۍ د یو د کیسونو ختمولو لپاره د آئینی ترمیم شوی دی نو هیڅ د کیس نه پکې څه رښتیا شته د کیس د پاکستان د عوامو لپاره نه داسې څه خشته دی چې موږ ومنو چې یار دی یو څه یو ښه اقدام وکړو نه دی بلاول زرداری خو د خپل نیکه سیاست دفن کو بس زه به دونه ووایم چې د خپل نیکه سیاست دا سیاستدان دی نه سیاست دی ته نه وایي که نه دی روسي سیاست شروع کړی یو زرداری لاړی بلاول لاړی سبا بلاول لاړ شي خور به راشي نه داسې نه ده پکار که نه ورم د پاکستان کې د 25 کروڑ عوام د ټولو پاکستان دی دا یوازې نه د سندي دی نه د بلوچي دی نه د پښتون دی نه د پنجابي دی دا زموږ د ټولو پاکستان دی نو موږ ټولو ته موقع میلاوېدل پکار ده نن ګوره هغه د جج یو صحیح ده موږ به داسې ووایو چې دام ښه دی 26वीं आईनी तरमीमी बिल په معامله باندې حکومت ته او خاص کر بلاول بھٹو زرداری ته چې کوم چیرمن پیپلز پارټي دی ورته پیغام سره لري جی زه هغه ته پیغام زه هغه ته څه پیغام ورکړم هغه په خپله پیغام ولیدو خپل څوک یې نه منظوروي هغه بل لا منظوریږي نه ولې چې اپوزیشن د څو پورې په پارلیمنټ کې نه وي نو پارلیمنټ نه شو که نه یک طرفه فیصله ده که نه اپوزیشن ترې دی په سینټ کې هم د خیبر پښتونخوا نمایندګي نشته نو څه له راشي جی څه له راشي هغو ته پته ده چې موږ ته فنډ نه میلاویږي د KPK فنډ د اوسه پورې نه دی منظور شوی د نورو صوبو منظور شوی دی ولې دا KPK د پاکستان حصه نه ده دا پښتانه د پاکستان نه دي داسې نه دي کول پکار بیا موږ چې اسلام آباد ته راځو وایي دهشتګرد رال نه داسې نه ده دا پاکستان د دې دپاره موږ قربانیانې ورکړي زموږ مشرانو ورکړي زموږ خویندو ورکړي زموږ میندو ورکړي نو لکه یک طرفه فیصله نه ده پکار پاکستان کې خو بالکل نه ده داسې بنګلادیش خو نه دی یار نه سریلنکا ده د پرامن احتجاج هم مطلب آئینی او قانوني حق مطلب هر یو انسان ته حاصل دی بالکل کو هغه سره هیڅ هم نه جي هغه پاکستاني هغه سره بالکل پرامن احتجاج دپاره آئینی حق هغه ته حاصل دی دا هر چا ته هر یو پاکستاني ته حاصل دی بلاول بھٹو زرداری وایي چې مطلب حکومت دا 26 آئینی ترمیمي بل دوی پاس کو د دې به ټول کام ته مطلب فایده هم وي او فایده به هم راسي جی څلورمه ورځ دا د ماته یوې ټکې فایده د ماته راوښیي چې کومه فایده شوې الټه نقصان نه 100% نقصاني ده 100% نقصاني ده الله صاحب 26 آئینی ترمیمي بل په منظورۍ باندې ستاسو نظر څه دی لکه زما یو ملګري دا اوس خبرې وکړې که نه خو زه به صرف شارټکټ یو مثال له دې داسې درکړم لکه اوس یو علاقه ده یو معاشره ده په هغه کې دا غله دي ډاکوان دي په خپله ځان له پاتاڼه کې یا په علاقه کې وسچو وګڼي یا DSP جوړ کړي د دې مثال موږ ته دغه شانې ښه ښکاره ښکاري نور په دې باندې خبرې بحث کول د پاکستان چې څومره عوام دی باشعوره دی خاص کر د خان صاحب د راتلو نه بعد که هغه یو بیل پاس کېږي که هغه بل څه ترمیم کېږي په آئین په لحاظ کېږي د پارلیمنټ کې دننه یو خبره کېږي هر انسان پوه شوی دی
هر انسان د حقیقت مخې ته راځي. نو بس ما خو ته په لنډ مثال کې یو خلاصه کړه چې د معاشرې یو څو لوټېرې ډاکوان هغه راټول شي ځان له پخپله یو سوچو وټاکي. 25 اکتوبر نه مخکې چې کوم د 26 آئین ترمیم بل د منظورۍ دپاره کوم کوششونه وي ټول به د هر څه کتلي وي. نو 26 آئین ترمیمي بل تاسو داسې ګڼئ چې دا د سیاستدانو دپاره فایده لري یا د عامو خلکو دپاره؟ ګوره که د عامو خلکو دپاره دې فایده لرلی که نه، که نن مثال موږ شاته نظر واچو 10 کاله کې یا 15 کاله کې دور کې، نو دا هماغه سیاستدانانو چې کوم د وطن څخه مخلص شو د پاکستان څخه په کار چې هغوی به مخکې اقدام کړی وی. که اوس یو ستونزه راځي د 2018 نه ستا عمران خان صاحب حکومت چې تېر شوی دی، نوي نوي شیونه پکې راځي په دې آئین کې، په دې پاکستان کې یو انتقام دپاره هر سیاستدان لکه دیو ټول دا کوم چا کې چې غلا یا پکې څه دغه پکې هغوی راټول شو، یو پلیټفارم ته راټول شو، هغوی د خپل ځان دپاره داسې یو دغه جوړوي چې ځان له پکې لاره ایستی شي، او چې څوک د دې پاکستان دپاره لګیا وي بس هغه دباوی ښکته را دباوی. 26 آئینی ترمیم بل منظورۍ کې خاص کر د بلاول بټو کوششونه او بیا مولانا فضل الرحمن هغې ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ ګوره فضل الرحمن صاحب چې کله د پی ټي آی سره د دیو ملاقاتونه کول د مشرانو سره، او دی ویل چې یاره لکه زه مخالفت کوم، هغه د ایکسټینشن په وجه وه چې دې کوم دا جسټیفایز عیسی چې اوس لاړی نه یا د ایکسټینشن و یا د بل و د هغه د ایکسټینشن که د هغه د آرمي چیف وي که هغه د چیف جسټس وي چې نه دی پکاره، ټیک ده چې نه دی پکار، نو بیا چې په میرټ باندې کوم کس راتلل پکار و، اوس ناصر دا راتلل پکار و، دی به زه بل رالی یا افریدي صاحب رالی، نو پکار چې په میرټ فیصلې وي دا ټول داسې هر څه سم وي، هر سړي به د حمایت کولی. که چېرته بلاول بټو صاحب د دې حمایت کوي یا د دې لپاره زور لګولی هغه پکې خپل څه فایده نه وي او د پاکستان لپاره کوي، الله دې ښه وګڼي چې نه یې کوي ولا، او دا کوم څه چې نن سبا ښکاري دا روان چې دی دا خو لا غلط دي، دې کې خو موږ ته هېڅ دغه ته داسې لګي چې د دې آئین ترمیم بل نه پس به خلکو ته د دې فایده رسي؟ نو فیلحال خو لا څه ویلی نه شو که نه، فیلحال خو موږ هم دغه ته اوس ګورو، دا عوام چې که څومره هم دی همدغه ته سوچ وړی دی چې ورګه بیل خو پاس شو، ټیک شو، ممبران خو پوره شو، پر دې به اوس فاید مخې ته راشي موږ به وینو. موږ ته خو لا څه ښکاري نه، او نه مخکې داسې څه یو دغه نه بعد لیدلي دي چې پلان یې کړی دی، ښه ډېر به یې کړی، خو لا څه هم لیدلي نه دي. 26 آئینی ترمیم بل په منظورۍ باندې حکومت ته اور خاص کر بلاول بټو زرداري صاحب ته پیغام څه لرئ؟ موږ خو به داسې وو که نه، موږ پی ټي آی والا داسې ما ملګري تاسو ته خبره وکړه که نه، موږ پی ټي آی که ورکران دي که هغه زموږ ایم این ای که هغه زموږ سینیر رهنمای که هغه یا څه خبره کوي یا څه احتجاج کوي خو دهشتګرد دي. موږ خو نن سبا په پاکستان کې ټول دغه شانتې یادېږو، ډیجیټل دهشتګرد دهشتګرد یادېږو. نو موږ به دا ووایو که نه چې بس ټیک د بیل خو پاس شو، بیل خو پاس شو، خو چې کوم هغه رقم سوچ دپاره شو، دا کوم منشور نظریه دپاره شو، هغه موږ د حکومت نه هم خواست کوو، د مشرانو نه هم کوو چې هغه دې پرې وشي، چې هغه لپاره نه کېږي نو بس بیا خو څه فایده نشته، بیا زړه په زړه هر څه ښه دي، بیا دا بیل هم بیرته کینسل کړي، هر څه دې ختم. 26 آئینی ترمیم بل کی منظوری کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح دیکھ رہی ہے اس عمل کو، جس طرح مطلب ملاقاتیں ہوئی ہیں پھر جو کوششیں اس کے لیے ہو رہی تھی؟ پہلے ہی ہمارے ملک میں ایک اندھیرا قانون ہے، نہ کسی کو انصاف مل سکتا ہے. اب 26 آئینی ترمیم میں جو ہے نا اور جوڈیشنوں کو بالکل ہاتھ پاؤں اس کے کاٹ دیے ہیں. ویسے ہماری جوڈیشری کسی قابل تو نہیں تھی، سوٹ کرتا ہے ان کو 26 آئینی ترمیم جو ان کو کیا ہے، اچھا ہے، ان پہ بس پولیٹیشینز ہی راج کرے تو بہتر ہے. تو بس اچھا ہے، جوڈیشری کی کیا ضرورت ہے ہمارے ملک پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال کے، پہلے ہی ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، جاہلیت ہے، سب کچھ ہے، انصاف نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو، نہیں مل رہا انصاف لوگوں کو، قانون پہ امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. عدالتوں میں جاؤ تو سالوں لگ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، 62 سال کی 70 سال کی عمروں میں مر جاتے ہیں، ان کے مقدمے اسی طرح پڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو 26 آئینی ترمیم بل ہے کیا اس کا فائدہ صرف سیاستدانوں کو ہے یا مطلب لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا؟ بس ان لوگوں کو ملے گا جو نواز شریف جن کی بات کرتا تھا کہ ایک مخلوق ہے اس نے ملک کو ہائی جیک کیا ہے، انہی کو ملے گا. تو 26 آئینی ترمیم بل کی منظوری کے حوالے سے حکومت کو اور پھر خاص کر بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمن صاحب کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، باقی دیگر بھی سیاسی جماعتوں نے جو کردار اس میں ادا کیا ہے، کیا پیغام ہے آپ کا ان سب کے لیے؟ ان سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے، بلاول بھٹو کا کردار سب کے سامنے ہے، مولانا کا کردار تو سب کے سامنے ہے، اس دفعہ تو کچھ اس نے غیرت دکھائی ہے. صرف ہماری ملک کی ضرورت ایک ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا نعمل بدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سب پہ دیکھیں نا کرپشن کے کتنے کیسز ہیں. 26 آئینی ترمیم کس لیے کی ہے انہوں نے، کس لیے کی ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے، ملک کس دہانے پہ ان کو کیا سوچ رہی ہے.
इमरान खान को रिहा करे, फिर देखते हैं 26 आईनी तरमीम का क्या बनता है। अवाम मुश्किल में, खान साहब पिछले साल से ज़्यादा अरसा हुआ है वो मतलब जेल में। हमारी मुश्किलात का हल सिर्फ इमरान खान है और कोई नहीं हो सकता। अगर ये जो इनको अगर अपने मुल्क से प्यार नहीं है, अपने लोगों से प्यार नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का। हमारी हुकूमत अच्छा है कि बस मतलब पाकिस्तान के आईन कानून ने जिसको बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, लोगों में बड़ी मायूसी फैली है। गरीब बंदा जो है वो उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जो अमीर है उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो 100 अरब मिलेंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, फ़र्क तो उन लोगों को पड़ता है जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल पिसे हुए हैं, जिनके पैरों में जूते तक नहीं है, जिनकी बात इमरान खान सिर्फ करता था। उसने लोगों को बेदार किया है, उनको शऊर दिया है कि भाई क्या चल रहा है। वाकई में अगर सोचा जाए तो बस 20% लोग हैं जो मुल्क पे काबिज़ हैं, इनके सोर्सेज पे, इनके एनर्जीज़ पे, इनके सब चीज़ों पे, और तो कुछ भी नहीं है। और उनके मज़े हैं, इस तरफ भी मज़े हैं, उस तरफ भी मज़े हैं। मुल्क से बाहर जाते हैं तो भी मज़े हैं, मुल्क में रहते हैं तो भी मज़े हैं। उनके लिए तो कोई कानून ही नहीं है। ऊपर से 26वीं आईनी तरमीम में क्या है। अगर पॉलिटिशियन इन जजेस का फ़ैसला करेंगे तो जज क्या फ़ैसला करेंगे। जज तो पहले से ही बेचारे कभी अगवा हो जाते हैं, कभी उनकी फैमिलीज़ किडनैप हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। हम जैसे लोग घरों में महफूज नहीं है तो जजेस का क्या करेंगे जो इतने बड़े बड़े फ़ैसले फिर करते हैं। कोई नहीं कर सकता। अगर कोई अदालत में जाता है तो वो कायस फाइज़ ईसा का अपने देखा है किरदार किस तरह रहा है। हक तलफी तो नहीं होनी चाहिए। हक तलफी आप किस चीज़ की बात करें। हक चीफ जस्टिस जिसका हक बनता था मतलब उसी को बनना चाहिए। हाँ, उसी को बनना चाहिए था। लेकिन इस मुल्क में किसको इंसाफ मिल रहा है। जो आप मंसूर शाह की बात कर रहे हैं, किसको इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ किसी को मिल रहा है? क्या इंसाफ है? क्या कोई अदालतें हैं? क्या कोई कानून है? तो जब नहीं है तो फिर आप किस लिए कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। आईन कानून के मुताबिक तो चलना चाहिए। मुल्क कहती हूँ कि इस मुल्क में मार्शल लॉ ही आ जाए तो बेहतर है। मार्शल लॉ बेहतर है। हमारे लिए फ़ौजी सूट करते हैं, उनको पता है, उनको दर्द है लोगों का, वो महसूस करते हैं दर्द। हाँ, वो ज़्यादा इंसाफ करेंगे हमसे। साहबा 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से क्या कहेंगे आप? अफसोस की बात है। कैसे देखा इस अमल को, जिस तरह की मुलाकातें हो रही थी, जिस तरह की कोशिशें हो रही थी 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए, फिर जिस तरह सेनेटर्स या MNAs को उठाया गया या जिनके प्लाजे गिराए गए। बहुत ज़्यादा जुल्म है ना, बहुत जुल्म है हमारे यहाँ। तो कोई अब तो लग रहा है कि हमारे पास कोई जीने का रह ही नहीं गया है, सबब नहीं रह गया। जो कुछ हो रहा है यहाँ पे हम लोगों के साथ किया जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। मतलब अपने मुल्क में हम आज़ाद नहीं हैं, चाहे हम आम शहरी हैं, चाहे किसी लेवल पे हैं, हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं हैं। ना हमारे डिसीजंस हैं, ना हम कुछ सोच सकते हैं, ना उस पर अमल कर सकते हैं। एक बिल्कुल बेकार सी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनफरादी तौर पे लोग अपने आप को आगे लेके आना चाह रहे हैं, वरना एज अ नेशन हमारे पास कुछ भी नहीं है। 2-2, 3-3 बजे तक रब्ते, मुलाकातें, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार के हवाले से क्या कहेंगी जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए उन्होंने जो किरदार अदा किया? मैं क्या कहूँ, इंतहाई किरदार है और क्या कह सकते हैं इसको। मतलब अपने आप से हट के सोचें ना, वो मुल्क के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। वो तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह हम अपने आप को सेव करें, कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को बचा लें कि बस हम ही रहें यहाँ पे और कोई ना हो। क्या ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी है ये भी उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए किया है या लोगों के फ़ायदे के लिए? ये तो क्लियरली नहीं, लोगों का फ़ायदा तो इसमें कहीं भी नहीं है, अपने आप को सेव करने के लिए, ताकि हमें किसी तरह से भी कोई हाथ ना डाल सके, यही बात है और तो कुछ नहीं है। तो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के मामले के हवाले से हुकूमत को और फिर ख़ासकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? यही कि वो अभी माशाल्लाह बिल्कुल नौजवान हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है सोचने का, करने का, तो वो अपने मुल्क के लिए सोचें और वो कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं अगर कोशिश करें। और कुछ अपने अराउंड लोगों को देखें जो अच्छे हैं, जो मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं, उनके साथ अगर मिल के काम करें तो बहुत अच्छा कर लेंगे।
आवाम मुश्किल में है, आवाम के लिए सोचना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह के हालात से वो मतलब दो चार है या जिस तरह के हालात का वो मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात है। तो आवाम को तो इन लोगों से कुछ नहीं लेना देना ना। हम लोगों को तो जो अपनी बेसिक नीड्स हैं हमारी, तो वही नहीं पूरी हो पाती हैं, तो आगे की बात क्या कर सकता है बंदा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि इस चीज़ की मुल्क को ज़रूरत थी। क्या वाकई आपके ख्याल में मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत थी? आपको नहीं लगता कि भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, उनका एंड हो गया है? इधर से जब फ्री होंगे अगला नंबर उनका है। अभी तो सिर्फ वो फोकस उधर है ना, अभी फोकस इधर से ख़त्म होगा तो उधर फोकस जाएगा। जनरल यहिया के साथ क्या हुआ था, उसको बंद करने के बाद फिर भुट्टो को फांसी दी गई थी। ऐसे ही अभी भी ऐसा ही है। तो क्या ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की जिस तरह मंजूरी की दी गई या जिस तरह ये मंजूर करवाया गया, आपके ख्याल में इसका फ़ायदा इन्हीं सियासतदानों को है या मतलब लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा? आपको नहीं पता इसका फ़ायदा किसको है? ये सियासतदान अवाम का फ़ायदा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ डाले वालों का फ़ायदा है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है हमें तो अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, तो आपको लगता है ये आईनी तरमीम हमारी अवाम के लिए है? अवाम के लिए नहीं है ये। मतलब सियासतदानों ने भी किरदार अदा किया है किसी के लिए? हाँ, तो मतलब अक्सर कहते रहते हैं कि ख़जाना खाली है, ख़जाने में कुछ नहीं है, लेकिन जब इस तरह की मतलब कोई तरमीमी बिल की मंजूरी आती है या मतलब किसी का इंतखाब होता है पार्लियामेंट से, तो फिर ख़जाना भर जाता है और फिर अरबों रुपए तकसीम करते हैं। तो उस चीज़ को आप किस तरह देखती है, जो मतलब सियासतदान कहते भी है कि ख़जाना खाली है? ये ख़जाना अवाम के लिए खाली है। ये ख़जाना बाकी सब के लिए खाली नहीं है, ये हमारे लिए खाली है। बाकी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अब हम बोल नहीं सकते, आपको भी पता है कि पहले मैं इस चीज़ में ना डी चौक में मैंने जाके बहुत ज़्यादा शैल खाए, तो मैं अब बोल नहीं सकती, मुझे बोलना मना है मेरा, तो मैं इसलिए बोल नहीं रही। बाकी सब इस टाइम बच्चे को भी आप पकड़ के पूछे ना कि ये तरमीम क्यों बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, इसका फ़ायदा किसको है, सबको पता है। हमारी आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। सियासतदानों को क्या फ़ायदा है? सियासतदान खुद अपने आप को किसी के नीचे दबाएंगे? नहीं, ये जिसको फ़ायदा तो होना था उनको हो चुका है। हमें इससे क्या मिलना है, हमें इससे क्या लेना देना है? हमें जो मिलना था वो मिल चुका है। 26वीं आईनी तरमीमी बिल में जिस तरह की मतलब इसके लिए कोशिशें की गई, रात 2-2, 3-3 बजे तक मुलाकातें भी होती रहती थी, तो इसमें ख़ासकर मोहसिन नकवी साहब, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के किरदार को आप किस तरह देख रही है? उनने जो किरदार अदा किया ना कि विकेट पहले से फिक्स थी। ये तो अवाम को पागल बनाने के लिए बिलावल जा रहा था, नवाज शरीफ जा रहा था, शहबाज शरीफ जा रहा था, उसका पहले से तय था, उसने ये करना था। वो सिर्फ बोला एंड पे है, मतलब ड्रामाबाजी कर रहा था। हाँ, ड्रामे कर रहा था। सबको पता है वो ड्रामे ही करता है, वो उससे कभी अच्छी की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो ड्रामे ही करता है, वो ड्रामे कर रहा था। तो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि मतलब ये ज़्यादातर मेरी कोशिश थी और मैंने इसके लिए किरदार अदा किया है, यही। तो आप हुकूमत को और फिर ख़ासकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पैगाम क्या देना चाहेंगी इस तरमीम के हवाले से? हुकूमत किसकी है आपको पता ही है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, डोरे पीछे हैं। और बिलावल क्या है? बिलावल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हम आगे हैं, बाकी तो डोरे पीछे सारी वो हिला रहे हैं, से हिल रही है डोरे, और जिनके पास हैं वो हिला रहे हैं डोरे। हम तो आगे वैसे ही नाच रहे हैं, हमारा नाचना ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये मुल्क जिस तरह के मुश्किलात में है, लोग तकलीफ़ में, लोगों को दिन ब दिन मतलब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, महंगाई आपके सामने, बाकी मसाइल आपके सामने, तो मुल्क के लिए इन सबको सोचना चाहिए। देखें, एक आखिरी उम्मीद थी इमरान खान, वो ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान ने स्टेप लिया था कि शायद इनकलाब आएगा, इनकलाब नहीं आया। ठीक है, अवाम बाहर नहीं आई, लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आईनी तरमीम बन गई। ठीक है, तो इमरान खान को लगा था कि हमारी आवाम टर्की की आवाम है जो बाहर निकलेगी, इनकलाब ले आएगी, इनकलाब नहीं आया, तो इसलिए अब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम को अब जैसे आप चाहें वैसे रख लें। हम आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, हम अपनी मर्ज़ी से ना एक रोड नहीं बना सकते, अपने हक़ के लिए एक रोड भी सीधा नहीं कर सकते, और बाकी पूरे सेक्टर गायब हो गए। ठीक है, आपको पता है मारगला का रोड क्यों बना है? वो वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, वहाँ पे आप ज़मीन, मेरा अपना ज़ाती प्लाट है, मैं नहीं ले सकती वहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर ऑर्डर हो चुकी हैं।
आईन कानून के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए, जिस तरह के अभी चीफ जस्टिस जिसका भी हक बनता था सीनियरिटी। एक चला गया दूसरा आ गया, वो भी उनकी मर्ज़ी का है ना, जिसको वो लाना चाह रहे थे वो आ गया। मतलब ये तरमीमी बिल में जो ये चीज़ थी कि तीनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे, तो क्या आप समझती है कि जो जिसका हक बनता था उसकी हक तलफी हुई है? ज़ाहिर है, जिसको आना चाहिए था वो तो नहीं आया ना, जिसको उन्होंने अपने लिए जो उनके हक में होता है वो उसी को लेकर आते हैं। तो बस अभी मैं तो बहुत ही मायूस हूँ। पहले तो मैं बड़ा इस इनकलाब के हक में बोलती थी, बट अब मैं चुप हूँ, क्योंकि बस आईनी तरमीम बन गई है। अब हम जो भी कर लें, अब वो अंदर खाने आपको पता है क्या चल रहा है, वो फैसले खुद कर ही नहीं रहे। आपको लगता है सियासतदानों ने इमरान खान को बंद रखा हुआ है? सियासी पार्टियाँ ऐसी नहीं होती, उसमें मेरिट होता है। जी, मेरिट तो है ही नहीं है ना, ये मेरिट पे आके बैठे हैं, मेरिट पे तो ये बैठे ही नहीं है। मतलब एक घर से मतलब नवाज शरीफ है, कोई और वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, शहबाज शरीफ है या मतलब कोई? उनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो किसको ला के बैठाते? उनके पास यही ऑप्शन था वो, वरना इसका कोई तुक ही नहीं बनती। सारी दुनिया में हम जलील हो गए, इसकी तुक ही नहीं बनती। इसको किस वजह पे? उनके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। इमरान खान को ख़त्म करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखें, मेरी इस टाइम एज है ना 33 इयर्स है, ठीक है। 33 इयर्स एज में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा सियासत में कि उसने शऊर दिया हो आवाम को। हमें तो एक खान ने शऊर दिया, आज हमें जाके पता चला सियासत है क्या, ठीक है। और सियासत का ये अंदर खाने जो चीज़ें कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, उसने आवाम को बस शऊर देना था, वो दे के जा चुका। मैं तो उससे यही कहना चाहूँगी कि खान साहब छोड़ के मुल्क चले जाएं। किरदार फिर भी हमेशा रहता है। खान साहब ने जो किरदार अदा किया है, जिस तरह के आपको क्या लोगों को, में अभी तक किसके लिए बैठा है? इसी कौम के लिए, कौम के लिए बैठा है ना, इस आवाम के लिए बैठा है। साहब 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से क्या कहेंगे आप? जिस तरह की कोशिशें हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, रात 2-2 3-3 बजे तक लोग मतलब एक दूसरे के घर जाते थे, क्या देखा आपने और मतलब क्या कहेंगे? बात तो यही है कि चीज़ें मतलब बियॉन्ड अवर कंट्रोल हैं। वो तो अपना सेल्फिशनेस थी, अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहे थे, अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रहे थे। तो वो तो एक ट्राइका था जो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहा था। और तकरीबन 22 क्लॉज ग़الباً बदली गई हैं, जो अभी तक उनके वीमन अपने जो मेंबर्स हैं नेशनल पार्लियामेंट के बारे में, उन्होंने भी वो अभी तक नहीं पढ़ी, ना उनको पल्ले पड़ी है। लेकिन अब देखें कि वो भी क्लॉज जो चेंज हुई हैं वो इस लेवल पे हैं कि इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट अगेन। क्योंकि जो वी लॉग वगैरह में हम सुनते हैं चीज़ें, ख़बरों में तो खैर वन साइडेड अफेयर होता है ना, तो वी लॉग में तो डबल साइडेड है कि क्या फ़ायदा और क्या नहीं होगा। तो देखें, अब अल्लाह ताला बेहतर करे कि हमारे मुल्क में जो हमारे लीडर्स हैं वो मुल्क के बारे में सोचें, नेशनलिस्ट हों। हम लोग 139th लेवल पे आ चुके हैं, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे, जबकि एक वक्त था जब पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था, स्पोर्ट्स में टॉप पे जा रहा था, डेवलपमेंट में जा रहा था, ईरान और चाइना की सपोर्ट भी कर रहा था। तो हर तरह की चीज़, अदालती निज़ाम भी आपके सामने था। दुनिया भर में पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और लोगों का जिस तरह की अदालतें से मतलब इंसाफ की तवक्को है, वो भी दिन ब दिन उठता जा रहा है। लोग यही सोचते हैं, यही कहते भी हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी थी या जो मतलब मंजूरी दी गई, क्या आपके ख्याल में इसका फ़ायदा सिर्फ सियासतदानों को है या लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा? और पिछली कुछ लास्ट टाइम गवर्नमेंट में हमारी जो थे जजेस ने हुकूमत को भी घर भेज दिया था, तो वो क्लॉजें सारी ख़त्म कर दी गई है ताकि इनकी सेफ्टी रहे और जब तक जो चाहें वो लोग सर्व करते रहें पाकिस्तान को बग़ैर किसी, इवन आपकी जो उनकी भी अपनी मर्ज़ी होगी और अपने हिसाब से वो जजों को भी लगाएंगे, अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को भी लगाएंगे, पार्लियामेंट को लगाएंगे। जिसने भी जिसको वोट देना है दे दे, उनको मतलब वोट उसका इख्तियार है, मतलब कि जिसको भी मतलब चाहे वो दे सकते हैं। हाँ, वोट दे सकते हैं हम अपने। मैं प्रोफेसर नाम है मेरा, डॉक्टरेट की इंग्लैंड से मैंने, तो मैंने बाहर इंग्लैंड पाकिस्तान से बाहर जॉब इसलिए नहीं की कि आई वांट टू बी फर्स्ट क्लास सिटीज़न। तो अब ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द फर्स्ट क्लास सिटीज़न, मेरी कोई से नहीं, कोई मार्केट नहीं है। अभी ग्रेड 22 के लिए वाइस चांसलर के लिए मैं अपील हुआ था गवर्नमेंट पाकिस्तान में, मेरा टॉप मेरिट पे नंबर था,
पंजाब गवर्नमेंट में, तो मैं 3 दफ़ा अपीयर हुआ मेरिट के बेस पर, 100/100 नंबर थे। लेकिन हार्ड लक है मेरी कि मैंने अभी तक जो अचीवमेंट की ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट पे करता रहा। तो लेकिन अब ये जो स्लॉट है, ये जब तक कि मेरी नेटवर्किंग पॉलिटिक्स से नहीं होगी, डिफेंस वालों से नहीं होगी, आई कैन नॉट अपॉइंट एज ए वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द डिलेमा ऑफ द सोसाइटी। मतलब फिर मायूसी भी इसमें इंसान में बढ़ जाती है और हक तलफी भी है। ज़ाहिर हक तलफी भी है कि मैंने इतना मेहनत की अपनी सारी ज़िंदगी, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के, और मैं 40 साल का तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला इसका रिवार्ड देने वाला है। ज़ाती मफादात के बजाय मुल्क के लिए, अगर आवाम के लिए बंदा सोचे तो उसका मतलब बंदे का वैसे भी दिल खुश रहता है और एक किरदार हमेशा के लिए याद भी रहता है। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल का मामला था या मंजूरी थी, इसके हवाले से हुकूमत को और फिर ख़ासकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम क्या, ये तो आपके सामने ही ये उठा पटक करके लोगों को उन्होंने अपनी तरमीम को चेंज करवाया है। तो अब मैं कहता हूँ कि इसको रिवर्ट करें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना था तो ये शुड बी रिवर्ट, ताकि इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट की जो टॉप लेवल है सुप्रीम कोर्ट को, उसकी आइडेंटिटी बरकरार है। पहले आईन कानून के मुताबिक जो भी चीफ़ जस्टिस सीनियर तरीन होता था वही, मतलब जज सीनियर तरीन होता था वही चीफ़ जस्टिस बनता था। लेकिन अब जो तरमीम पास की गई है तो अभी मतलब तीनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? तो आपके सामने ही है, जैसे मैंने बात की अभी वाइस चांसलर बनने के लिए कि मैं भी टॉप पे था, तो वो मतलब अगर मेरे नंबर 100% भी होंगे तो मुझे तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। वो तो जो बंदा जिसको मफाद जिससे मिलेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा ना। तो इसी तरह आपकी जज हैं तो वो भी सिलेक्टेड हो गए ना। वो तो कोई आइडेंटिटी नहीं रही ना, कोई मेरिट नहीं है। नुकसान हमारे मुल्क है। तो टोटल हमारा मुल्क अब 139 लेवल पे आ चुका है ना। तो इसका मतलब कि हमारी मेरिट सिस्टम ख़त्म हो गया, शेर की ज़बान में मुल्क बढ़ गया। मतलब इससे हमारी इंडस्ट्री सेक्टर बेकार हो गया, बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई। हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर मार्केट में आता है उसकी सैलरी मुश्किल से 30-35 मिल रही है, और पहले तो जॉब नहीं मिलती बेचारे, वो लोग और जॉब करते हैं। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और वहाँ पे दुबई में एक साल में 4000 तक के लगभग कंपनियां रजिस्टर हुई है। उसमें से ज़्यादातर लोग मतलब पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, उन्होंने रजिस्टर कराया। हाँ, वो सारे पाकिस्तानी। नुकसान हमारे मुल्क को है। तो ज़ाहिर है हमारा जो क्रीम थी, जो हमारा टैलेंट था, वो अक्रॉस दी मतलब पाकिस्तान चला गया। अब वहाँ पे जाके ये लोग शाइन करते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, और हमेशा नाम कमाते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह PhD करके आया, 2.5 साल में डॉक्टरेट की मैंने शेफील्ड यूनिवर्सिटी से। तो अल्लाह का शुक्र है, आई वाज आल्सो शाइनिंग ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑलवेज। आई वाज टॉप करता था हर क्लास में, यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में। तो लेकिन सिफारिश होती तो मैं भी आज प्रेसिडेंट बन लगा था पाकिस्तान का। 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से क्या कहेंगे आप? इसमें ये है कि टोटल फेवर में जा रहा है नून लीग के, और जाहिर सी बात है कि जो केसेस वगैरह होंगे उनके वही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। फेवरेटिज़म है सारा। कोशिश तो ज़्यादातर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया, और मतलब फ़ायदा नून लीग को मिल रहा है। दोनों को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि बिलावल के भी जिसने किरदार, बिल्कुल बिलावल का अपना किरदार है, मौलाना का अपना किरदार है, सबको फ़ायदा है। ये सारे अब एक ही तरफ हो गए हैं, और जाहिर सी बात है जिसकी लाठी उसी की इसकी कह रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी थी, या जो हमने कोशिश की है इसके लिए जो मंजूर किया गया है, मुल्क को इसका मतलब फ़ायदा है और मुल्क को इसकी ज़रूरत ही नहीं कोई, मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऐसा फ़ायदा होगा इससे जो भी है पॉलिटिशियंस ये जो है अपने जो बैठे हैं इक़्तिदार में, नहीं कोई फ़ायदा। अपोजिशन को तो मेरे ख़्याल से कोई फ़ायदा नहीं है अब तो, बिल्कुल मेरे ख़्याल से उनके तो कोई चांसेस भी नहीं है अब मज़ीद, बल्कि उनको अब मज़ीद घेरा जाएगा, उनको फंसाया जाएगा। अब तो लोगों का इसका फ़ायदा है आपके ख्याल? नहीं बिल्कुल फ़ायदा नहीं है इसका। मैं तो ख़ुद इसके अगेंस्ट हूँ, जो तरमीम जो है इसके अगेंस्ट हूँ मैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना। मतलब जो कुछ भी किया है अपने लिए, जो कुछ किया अपने लिए किया, इन्होंने अपने केसेस के लिए किया, अपने केसेस से जो है ना वो बरी होना इन्होंने, और इस वजह से जो है ना इन्होंने किया। उसके अलावा तो कोई जो है पाकिस्तान के मफाद के लिए तो कुछ भी नहीं है ये। मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार को आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह किरदार उसने अदा किया इसमें? मौलाना फजल रहमान आपको पता है कि वो फिर जो है ना वो गो विद द फ्लो के साथ हमेशा जो है ना वो आ जाते हैं।
कि पहले तो वो अगेंस्ट थे इसके, लेकिन एकदम इन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं अपना जो है ना वो सारा चेंज कर लिया और अब उनकी तरफ हो गया। तो ये जो चीफ जस्टिस की मतलब तैनाती का मामला है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी का मामला है, हुकूमत को और ख़ासकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो जिस तरह का उनका माइंड है, फ़िलहाल उनका तो कोई ये भी चांस नहीं बन रहा कि आगे आने का कोई भी, और चीफ़ जस्टिस से यही है कि बेहतरीन कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बेहतरीन फ़ैसले करें और इंसाफ करें। आपको लगता है जो आईन पास हुआ है उसके बाद 3 जजेस में से एक मतलब वो सिलेक्ट करेंगे, पहले मतलब आईन और कानून के मुताबिक जिस तरह के जो सीनियर तरीन जज होता था वो चीफ जस्टिस बनता था, तो उस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या समझते हैं कि ये भी हक तलफी के लिए ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल पास हुआ है? बिल्कुल, ये हक तलफी हुई है, जजेस की भी हुई है, और मेरा ख्याल से उनके तो हाथ पाँव दोनों काट दिए हैं, अब तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है ना। इस तरमीम से यही साबित होता है कि फ़ैसले भी इन्हीं के ही हैं जो इक़्तिदार में है, फ़ैसले भी इन्हीं के, सज़ा भी इन्हें नहीं देनी है, और ये फ़ैसले इन्होंने नहीं करने। साहब 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से क्या कहेंगे? क्या देखा आपने अब तक इसमें जो मुलाकातें हो रही थी या जो कोशिशें हो रही थी? इसमें सबसे पहली बात तो 26 आईनी तरमीम से इन्होंने जो आइन का बुनियादी ढांचा है वो तब्दील। बुनियादी ढांचा क्या होता है? कुछ चीज़ें होती हैं कि वो आप आइन में उस हवाले से डिटरमेंट हैं ऑलरेडी, उसको आप फ़र्ज़ करें कि हमारा मज़हब स्टेट का रिलीजन वो इस्लाम होगा। अब कोई असम्बली आके बैठ जाए और कहे कि इसको हमने रिवर्स करना है, वो नहीं कर सकती। सेकेंडली ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स जो आइन में दिए गए हैं, आप उसके ख़िलाफ़ अगर लेजिस्लेशन करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि उस लेजिस्लेशन को सेट असाइड कर दे, चूँकि वो बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ हैं। सिमिलरली ये जो 26 आईनी तरमीम है ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एग्जेक्टिव और तीसरा जो ये आज़ाद इंडिपेंडेंट कानून आइन में ये है कि ये तीनों इदारे इंडिपेंडेंट काम करेंगे। अब आइनी इस तरमीम से क्या हुआ है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। मतलब कि कौन अपॉइंट करेंगे? एमएनएस और सेनेटर्स गवर्नमेंट के, वो बैठ के, और वो मेजॉरिटी में है। ये इन्होंने एक ड्रामाबाजी की है कि जी 4 सेनेटर अपोजिशन के होंगे इतने और इतने हुकूमत के होंगे, सब मिला के मेजॉरिटी हमेशा से हुकूमत की होगी। अब एक जज जिसने चीफ बनना है, 3 बैठे हुए हैं, वो गवर्नमेंट को ओब्लाइज करेंगे कि हमें चांस मिले चीफ बनने का, ठीक है? तो ये समझो कि वो सारे जो जज बैठे होंगे लाइन में, सीनियरिटी का तो है ना, जो है उसका राइट है उसको मिल गया। अब ये है कि जो गवर्नमेंट की ज़्यादा फेवर करेगा, जो गवर्नमेंट को रिलीफ देगा केसेस में, स्टेट ऑलवेज, आप जो सिटीज़न किसी स्टेट का होता है वो स्टेट के अगेंस्ट उसकी ग्रीवेंस होती है, वो कोर्ट्स में जाता है अपनी जो रियासती इदारे होते हैं उनके खिलाफ। तो यहाँ पे तो जब कोर्ट जजेस अपॉइंट करेगी हुकूमत, तो हुकूमत के खिलाफ फैसले कौन देगा? हुकूमत के ख़िलाफ़ इंसाफ कौन करेगा? तो मैं एक बात और भी बता दूं कि ये सरवाइव नहीं करनी इसने। जब भी इंडिपेंडेंट जजेस आएंगे इसको सेटिसाइड कर देंगे और ये चैलेंज होगी और ये नहीं सस्टेन करेगी, क्योंकि ये बुनियादी आईनी बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है ये तरमीम। तो क्या आपके ख्याल में ये जो 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी थी, इसका फ़ायदा सिर्फ सियासतदानों को है या लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं सर। आप देखें ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस टोटल कितनी है? 150, और कितने लाखों केसेस हैं दूसरे जो लोगों के, जो शहरियों के केसेस हैं। अब इन्होंने 150 केसेस के लिए ये इतनी बड़ी कोर्ट, इतना बड़ा बेंच, इतनी बड़ी ड्रामाबाजी, इतनी बड़ी जनाब एफर्ट के जनाब, ये 1 महीने से सब लोग लगे हुए हैं। ये सिर्फ जुडिशरी को अपने महतहत करने के लिए ये सारी कोशिश हुई है।
कोई अवाम का, वो मुझे एक बता दें कि कोई इस अमेंडमेंट में अवाम का एक फ़ायदा बता दें। अब 150 केसों के लिए एक इन्होंने बेंच बना दिया है, स्पेशल बेंच, और सिर्फ क्या है कि वो वहाँ पे हमारी पिटिशनें जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होंगे, और वो जजेस हमारे अपने लगाए हुए होंगे, वो हमें ओब्लाइज करेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करें, चाहे आइन की खिलाफवर्जी करें, कानून की खिलाफवर्जी करें, जो कुछ करें, उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये उनका अल्टीमेट जो उनकी इंटेंशन थी ना, वो जुडिशरी को मातहत करने की थी, और वक्ती तौर पे वो ये कर गए हैं। अब ये जो है ना, ये चलेगी या नहीं चलेगी, या कोर्ट्स इसको किस तरह देखेंगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। और अगर ये गवर्नमेंट भी चेंज होती है, ये अभी 5-6 महीनों की गेम है, ये गवर्नमेंट जाएगी तो ये अमेंडमेंट्स रिवर्स होंगी। जब दूसरे आएंगे ना, तो वो इस तरह इनको नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन पूरे को आपने, जिसने आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है हुकूमत की, स्टेट के इदारों की, लोगों की, तो वो आप अपने मातहत कर रहे हैं। तो वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कौन करेगा? जुडिशरी इधर हो गई, आपके साथ मिल गई, तो फिर आपको कोई पूछने वाला है? अवाम धक्के खा रही है, मेजॉरिटी लोगों की बीटीआई के साथ है, 80% लोग उनकी फेवर करते हैं, वो आप निकलते हैं उनके खिलाफ तो आप उनको मारते हैं रोडों पे। अब कोई ऐसी फोर्स है जो इनको काउंटर करे, जो इनकी वायलेशन को रोके? नहीं है। और इसीलिए कि एक अदलिया थी, जुडिशरी थी जो कि रोक सकती थी या रोकती थी इसकी हिस्ट्री, यानी कि कुछ जज कंप्रोमाइज होते हैं, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी में फैसले न्यूट्रल भी आए हैं। तो अब तो इन्होंने जाके उसको बिल्कुल इस तरह हथौड़ा मारा है कि भाई इसको जुडिशरी के पर काट दो, एट दैट्स ऑल, फिर अपनी मनमानियाँ करो, और ये करेंगे, वक्ती तौर पे करेंगे। नुकसान तो इससे मुल्क का होगा। एग्जैक्टली, सारे नुकसान देखें, जब आपके एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो जो फैसले आप अवाम को मारें, फ़र्ज़ करो इधर अवाम को घसीटें, रोडों पे मारें, कोर्ट्स टेकअप नहीं करती, या कोर्ट्स स्टेट के खिलाफ इंसाफ नहीं देती, तो ये लोगों पे उनकी ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वायलेशन करेंगी। अब किसी को उठाते हैं, अगवा करते हैं, वो 199 में हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में जाता है, हैबिस कॉर्पस की रिट करता है। अब जब जजेस आपके होंगे, स्टेट अगवा कर रही है, जजेस आपके बैठे हैं, तो कौन उनको इंसाफ उनको कहाँ से मिलेगा, उनको कौन रिकवर करेगा? तो ये एक जुल्म, ये यानी कि ना मार्शल से भी बदतर इन्होंने सिस्टम वक्ती तौर पे क्रिएट कर लिया है। इसमें जो खासकर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार को आप किस तरह देखते हैं, जो किरदार उन्होंने अदा किया? देखें, इनकी तो नून लीग, नकवी हो रहा है वो, और ये पीपल्स पार्टी, इनका तो अल्टीमेट यही था इंटेंशन इस अमेंडमेंट के कि हमने जुडिशरी के पर काटने हैं, जुडिशरी को कट टू साइज करना है, जुडिशरी को अपने मातहत करना है। लेकिन फजलुर रहमान ने किसी हद तक अपना रोल अच्छा प्ले किया है। फ़र्ज़ करें कि जो ये ला रहे थे जी कि जो रिट पिटिशन हम करते हैं कि अगवा होता है हैबिस कॉर्पस की, उसके कोर्ट से ये ले रहे थे उसके अख्तियारात। सेकेंडली, ये रोटेट कर रहे थे जजेस को कि फ़र्ज़ करें हाई कोर्ट में एक पिटीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, अब वो जज इनके अगेंस्ट जाता है, ये क्या करेंगे, उसको उठा के बलूचिस्तान के किसी बेंच में डाल देंगे। तो ये भी फजलुर रहमान ने, अच्छा सबसे बड़ी बात जो फजलुर रहमान ने कंट्रीब्यूट किया, और हमें एडमिट करना चाहिए, हम उसके मुखालिफ हैं अदरवाइज़, लेकिन ये एडमिट करना चाहिए कि वो ये लोग काजी फायज ईसा को रखना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड, और उसके थ्रू जिस तरह इन्होंने 2 साल चलाया है, इस तरह 3 साल और चलाने का प्लान था। और ये भी फजलुर रहमान की रेजिस्टेंस की वजह से जो क्लासेस, जो प्रपोज क्लासेस निकाली गई हैं, वो फजलुर रहमान को उनका क्रेडिट जाता है, वरना बहुत जुल्म था। ये भी एक किस्म के जुल्म तो है, लेकिन वो इंतहाई दर्जे की, यानी कि उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का ऑप्शन था कि सिविलियन को ट्रायल करें, उसमें रिट पिटिशन के अख्तियारात हाई कोर्ट के ख़त्म कर दे, जो अगवा हुआ पड़ा रहे, उसको कोई पूछने वाला ना हो। इसी तरह जजेस की रोटेशन, वो उसमें बड़े अच्छा फंडामेंटल राइट्स, उनको उनके अगेंस्ट कोई आपको जो है ना रिलीफ कहीं से नहीं मिलना था। तो वो चीज़ें फजलुर रहमान ने एक बेंच बन के आए, ठीक है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की कर्टेल हुई है, लेकिन फजलुर रहमान ने
इसमें अच्छा रोल प्ले किया है कि जिस हद तक उसने वो कर सकता था उसने कुछ चीज़ों को वो ख़त्म करवाया है जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट का था। ड्राफ्ट जो था पहले वो 56 इतने समथिंग उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी के हवाले से हुकूमत को और फिर ख़ासकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यही दावा कर रहे हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादातर कोशिश की है इसकी मंजूरी के लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोशिश किया इनकी, देखें ये एक प्लान के तहत हुआ है, ये कोई इसकी बिलावल भुट्टो की एफर्ट या नो, इन्होंने एक प्लान किया है कि अपने आप को 3 साल किस तरह बचाना। अब एक इलेक्शन जेली हुआ है, 17 सीटें इनकी हैं, उनकी भी तकरीबन इतनी है। अब एक जेली सिस्टम इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है। अब उसको बचाने के, अब इनको पता है कि इंडिपेंडेंट जजेस जब आ रहे हैं, काजी फाइजा जा रहा है, इंडिपेंडेंट जजेस आएंगे, वो इस इलेक्शन को नल एंड वाइड करा देंगे या रिवर्स कर देंगे। इस जो सीटें पीटीआई की हैं 180 सीटें हैं, अगर रिवर्स होते हैं तो गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई की बनती है। तो अगर ये इलेक्शन फ़र्ज करें नल एंड वाइड होते हैं कि ये सिरे से भाई वो उससे सारी अपना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की खिलाफ वर्जी हुई है, सारा कुछ हुआ है, और ये इलेक्शन इनको ये बेसिकली आइडिया हो गया था कि जजेस इंडिपेंडेंट आ गए तो ये इलेक्शन रिवर्स हो गया, तो हमारी हुकूमत गई और इमरान आएगा। तो फिर ये उन्होंने बांधने के लिए पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने या जो उसके एलाई से, वो उन्होंने इसका बांधने के लिए कि ये कहीं इलेक्शन रिवर्स ना कर दें कोर्ट्स, ये इस तरह ये सारी प्लान करके ये एफर्ट आपको बचाने अपने आप को बचाने, अपने आप को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये इसमें जमहूरियत का किधर से, बिलावल साहब से पूछें कि इसमें जमहूरियत का एलिमेंट इस अमेंडमेंट में किधर से आया। आपका जो ड्राफ्ट था उसमें तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और क्या कुछ नहीं था। ये अब वही रेपिटिशन चाह रहे थे कि अब बिलावल की बारी आएगी, अदरवाइज इसमें कोई इनकी इसकी अवाम के लिए या जमहूरियत के लिए या आइन के लिए इस तरमीम में कुछ भी नहीं। तुमको 26वीं आईनी तरमीम बिल मंजूरी बांधे दखल को तफसीली खबर है तासु वावरदे दुई हवे चकुम दगा 26वीं आईनी तरमीम बिल मंजूरी हुकूमत वर्कड़ा चकुम दुई कोशिशना वकल दा हर स दुई दखपल जान दे पारा कड़ी दी पदे के दे आवाम हिस्से किस्म फायदा निष्ठा ददे सरा जमुंग ददे प्रोग्राम वक्सर तरसी दबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव सही अल्लाह पामान।